Okay. Okay. Now we start our session, and our today topic will be the inheritance. In previous class, we already discussed about the different features of object-oriented programming, like encapsulation of data abstraction, uh, data hiding. Okay, and today we discuss about the inheritance. Okay, basically inheritance is the most important property of object-oriented programming language. uh, when we talk about the inheritance, then more than one classes will be required. Okay, just like in PPT, we can easily say that one is the base class. This is the base class is known as the parent class, and the other two classes, one is the derived one and another is the derived two. Okay, so basically derived one and derived two are basically known as the child class, and base class is also known as the super class or parent class. Okay, so that means ki the parent class is also known as the base class or super class, and child class, that is derived one and derived two, is also known as the derived class or subclass. Okay, so basically first upon we have to know what will be the concept of the super class and what will be the concept of the derived class. Okay, so basically super class will be the class. Okay, uh, that consists all the member variables and functions. Okay, it with and its property will be inherits by the derived class. Okay, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो क्लास है ए और बी, ठीक है ना। अब ए और बी दोनों में से हम बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास किसको बोलेंगे, और एक को डिराइव्ड क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास किसको बोलेंगे। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो बेस क्लास होगा और जो सुपर क्लास होगा वो हमेशा सबसे ऊपर डिफाइन करेंगे, और जो उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा उसको उसके नीचे में डिफाइन करेंगे। ओके, दैट मीन्स कि अगर है, ए के अंदर में एक फंक्शन है सो नाम का, ठीक है, और बी भी एक सपोज कीजिए क्लास है, और बी चाह रहा है कि ए के अंदर में जो फंक्शन है, दैट मीन्स कि जो फंक्शन सो है उसको यूज करना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर इनहेरिटेंस अगर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या पॉसिबिलिटी थी, ए के अंदर में जो शो फंक्शंस लिखा हुआ है सेम वही फंक्शन बी भी लिखे अपने साथ में, ये होगा ना पॉसिबिलिटी। अदरवाइज क्या हो सकता है, ए के अंदर में जो फंक्शन शो लिखा हुआ है उसको क्या करे, बी उसको इनहेरिट कर ले। इनहेरिट करने का मतलब क्या है कि जैसे ही बी ए को इनहेरिट करेगा यानी उसकी प्रॉपर्टी को यूज करेगा, दैट मीन्स कि द ऑब्जेक्ट ऑफ बी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास यानी ए। ओके, that means कि the derived class share some of the properties of the base class. Therefore, a code from a base class can be reused by the derived class. That means कि inheritance provides a platform where we can reuse our code, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन हमने लिख दिया, उस फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, बार बार कर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके, so we already see what is the base class, what is the super class, or why it is called as a parent class. Okay, and the derived class, that means derived class, subclass or child class, that will inherit the property of its base class or super class or its parent class. Okay, now basically in the this side inheritance will be categorized into five types. Okay, दैट मीन्स कि सी प्लस प्लस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे इनहेरिटेंस को 5 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। जिसके अंदर में आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस एंड अनदर इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, so basically these are the 5 types of inheritance that is available in C++. Okay, one by one I will describe the inheritance. Okay,
नाउ नेक्स्ट इज द ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट? सपोज आप जैसे सी का प्रोग्राम करते हो, है ना. सी के अंदर में सपोज कीजिए कि आपने एक फंक्शन बनाया. सपोज कीजिए कि उस फंक्शन के अंदर का नाम है सम, और उसके अंदर में हमने दो पैरामीटर पास कर दिया, इंट ए इंट बी. ओके. तो व्हाट विल बी द बेसिकली व्हाट विल बी द टास्क ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन? This function will perform the addition of two numbers that having the data type integer. Okay. But when we have to perform the addition of three numbers, so it will be possible that it will be perform the same operation that will be on three variables. ये possible है कि जो हमने फंक्शन अभी बताया सम ए बी, वो तीन वैल्यूज को ऐड कर सकता है? नहीं कर सकता है. दैट मीन्स कि वी हैव टू declare or define the body of the another function that consists three parameters. Okay. Suppose sum int a int b int c. Okay. So basically this is the concept of the overloading, where the name of the function will be same, but the arrangement of the parameter will be the different. Okay. So basically overloading in C++, there are two types of overloading. One will be the operator overloading and another is the function overloading. Okay. और फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या करते हैं? फंक्शंस को हम क्या करते हैं? ओवरलोड करते हैं. जैसे मैंने अभी सिंपल एक एग्जांपल भी बताया था. एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट अबाउट द ओवरलोडिंग? सब लोग को समझ में आ रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? कि दैट मीन्स कि हम उसको प्रैक्टिकली करके बताएं एक बार. सर एक बार प्रैक्टिकल बता दीजिए. वेरी गुड. ठीक है, ये चीज आप बताते चलिए, है ना. देखिए अब एक बार हम लोग प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा चलते हैं. ओके. इनहेरिटेंस क्लियर है सबको? यस सर. इनहेरिटेंस को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं मैं पिक्चर बना करके? यस सर, इनहेरिटेंस को थोड़ा और क्लियर कर दीजिए. यस यस, गुड गुड. इनहेरिटेंस एक्चुअली ज्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी आप लोग को क्लास में वो सारा चीज डिक्लेयर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ओके. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेंस फर्स्ट. ओके. इनहेरिटेंस विजिबल है फॉन्ट साइज? यस सर. This is the inheritance. Okay. लिख देते हैं. It provides the platform where a class यानी derived class oblique child class, ठीक है, oblique sub class, okay, can use or share the property of its of another class, है ना. अनदर क्लास के प्रॉपर्टी को शेयर कर सकता है. अनदर क्लास का मतलब क्या है? दैट विल बी द पेरेंट क्लास, इट मे बी द सुपर क्लास, है ना, और इट मे बी द पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, और क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड क्लास. पेरेंट क्लास, सुपर क्लास. ओके, चलिए, पेरेंट क्लास एंड सुपर क्लास. ओके. तो दैट मीन्स it provides a platform where a class can use और शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास. तो जिसकी प्रॉपर्टी को यूज करेगा और शेयर करेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट क्लास या सुपर क्लास. फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सपोज कीजिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पहले आपको बता देते हैं हम, है ना. नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. ओके. What will be the types of inheritance? Types of inheritance में सबसे पहला जो है that will be the single label inheritance. ठीक है ना, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. ओके.
अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का सिंपल हम पिक्चर बनाएंगे और डिफिनीशन को आप बताएंगे। ओके, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि वैसा इनहेरिटेंस जिसके अंदर में क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगा और एक क्या होगा, आपका चाइल्ड क्लास होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको देखिए, एक पिक्चर बना देते हैं आपके लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये आपका एक क्लास है। ओके, कॉपी, ठीक है। ओके, यहाँ पे सपोज कीजिए ये क्लास है हमारा ए, ठीक है। और इस ए के अंदर में हमारे पास सपोज कीजिए एक फंक्शन है पब्लिक, ध्यान से देखना है सबको, void show1। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट, ये पिक्चर है ना, ये थोड़ा सा ये हो रहा है, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका, तब आपको दिखेगा अच्छे से। पहले वाला डिलीट हो गया था। नहीं, डिलीट नहीं हुआ है वो। और ये सर, ये इमेज के एज ए इमेज कॉपी पेस्ट हुआ है। नहीं हुआ था। नहीं नहीं, इसमें भी एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं। ओके, एक मिनट हटा देते हैं इसको, एक बार रुकिए। यहाँ पे ओके, डिलीट, इसको भी डिलीट, एक मिनट रुकिए। इंसर्ट, ये वाला लेते हैं। टेक्स्ट, मान लीजिए क्लास का नाम क्या है, ए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया void show। एक फंक्शन आपका ये है, ठीक है ना, क्लास ए। एक दूसरा क्लास यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है। एड टेक्स्ट, मान लीजिए कि इसका नाम क्या है, बी, ठीक है। और इसके पास एक फंक्शन है void show1 के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, आपका पेरेंट क्लास। सपोज कीजिए ए पेरेंट क्लास है और बी क्या है, आपका चाइल्ड क्लास है। तो ए और बी को पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास कब बोलेंगे, जब बी क्या करेगा, ए की प्रॉपर्टी को यूज करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है। सपोज कीजिए कि इस तरीके से हम ले रहे हैं, ये बना दिया एरो, सपोज कीजिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। दैट मीन्स कि बी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ किसका, ए। यहाँ पे लिख देते हैं 16, here the class B can use the property of class A, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इसमें पेरेंट क्लास कौन सा होगा, विच विल बी द पेरेंट क्लास, ए सर। वेरी गुड, ए है ना। जिसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे दैट विल बी द पेरेंट क्लास, है ना। अब यहाँ पे हाउ कैन द क्लास बी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ए, बाय यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लीजिए b1, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे b1 डॉट ए के अंदर में फंक्शन कौन सा है, सो, ठीक है। ये तो इस तरीके से क्या होगा कि आप क्या कर सकता है, बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, फंक्शंस को वहां पे कॉल कर लेंगे। समझ में आया, ठीक है।
अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है ये किस, यहाँ पे तो सर ने एरो दिखा दिया, लेकिन प्रोग्राम में क्या करते हैं, प्रोग्राम में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, ठीक है, क्लास, क्लास का नाम क्या है, बी, है ना। अब बी को किसको इनहेरिट करना है, ए को, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास बी कोलोन PUBLIC पब्लिक एंड ए। इसका मतलब ये है कि क्लास बी क्या करेगा, ए के अंदर में जितने भी पब्लिकली डिफाइंड डेटा है उसको वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली उसको यूज कर सकता है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पब्लिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लास बी पब्लिक ए। इसका मतलब क्या है, बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को, ए में किस तरीके के डेटा को, जो कि पब्लिकली डिफाइंड है। एवरीबॉडी क्लियर। यस सर। ओके, ये पिक्चर समझ में आ रहा है। यस सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट है, ये है सिंगल, है ना। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे फिर एक पिक्चर बनाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसका मतलब यहाँ पे ये बताइए सबसे पहले, जो हमने यहाँ पे सिंगल लेबल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेज, मिनिमम क्लासेज दैट विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सिंगल लेबल इनहेरिटेंस, यानी सिंगल लेबल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मिनिमम कितनी क्लासेज रिक्वायर्ड होंगी। तो व्हाट विल बी योर आंसर। सिंगल लेबल इनहेरिटेंस को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो मिनिमम आपको कितनी क्लासेस चाहिए होंगी, सर दो। दो। हाँ वेरी गुड, दो चाहिए होगा। एक क्या होगा, पेरेंट क्लास होगा, और दूसरा क्या होगा, चाइल्ड क्लास होगा। गुड। अब ये सिंगल लेवल हो गया ना, अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, फिर एक पिक्चर बनाएंगे। मल्टीपल का मतलब ये देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि एक पेरेंट क्लास को एक का एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है ना। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक ही चाइल्ड क्लास के मोर देन वन पेरेंट क्लास होंगे। फॉर एग्जांपल, यहां से इंसर्ट करते हैं फिर से, सपोज कीजिए यहां से इसको लिया, ठीक है, दिस विल बी द क्लास ए। टेक्स्ट, मान लीजिए ये है क्लास ए, ठीक है ना, और इसके अंदर में फंक्शन है पब्लिक, यहाँ पे लिख दिया void show 1, ठीक है, एक पहला क्लास। फिर एक क्या करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से कर देते हैं, ये हो रहा है, इंसर्ट लेते हैं फिर से, एक दूसरा क्लास लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इसको भी ऐड टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्लास बी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक void show 2, ओके, ठीक है। अब एक और लेते हैं यहाँ से, हो गया, ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे कर दिया सी, और यहाँ पे लिख दिया पब्लिक, ठीक है, void show 3, ओके। तीन क्लासेज हैं, हमारा एक क्लास कौन सा है, ए है, दूसरा क्लास कौन सा है आपका, बी है, और तीसरा क्लास कौन सा है आपका, सी है। तीन क्लासेज हो गए ना आपके, ठीक है। अब तीन क्लास में से सपोज कीजिए कि हमको कौन सा क्लास यूज करना है, हमारा सी है चाइल्ड क्लास, और ए और बी क्या है, दोनों हमारा पेरेंट क्लास है। इसको इस तरीके से मान लीजिए कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से उठाया इस तरीके से, ठीक है। एक और ले लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, पेरेंट क्लास ये है, और सी क्या है, आपका चाइल्ड क्लास है। ठीक है। अब ये बताइए कि ए और बी अगर पेरेंट क्लास है और सी अगर चाइल्ड क्लास है, तो अगर हम सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, मान लीजिए कि हमारा सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने C1, है ना, तो ये सी का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से फंक्शंस को कॉल कर सकता है? एनीबॉडी? सर दोनों हेलो। पेरेंट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। हाँ, दोनों पेरेंट फंक्शन को कॉल करेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे ए, दूसरा बनाएंगे क्लास बी, और तीसरा बनाएंगे क्लास सी, है ना। तो क्लास सी बना करके अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि मल्टीपल सिंगल इनहेरिटेंस में तो हमने वहां पे लिख दिया था, है ना, क्लास बी पब्लिक ए, लेकिन अगर मल्टीपल होगा तो क्या लिखेंगे? तो हमारा चाइल्ड क्लास क्या है, क्लास सी, ठीक है ना। और दोनों जो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, ए और बी, और हमको क्या करना है, उसको पब्लिकली इनहेरिट करना है। पब्लिकली इनहेरिट का मतलब क्या है कि उसके जो भी कुछ क्लास ए और क्लास बी के अंदर में जो उसके पेरेंट क्लास है उसके अंदर में जो पब्लिकली डिफाइंड जो वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं उसको हमें यूज करना है। तो क्लास सी यहां लिखेंगे पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। ओके। क्लास सी कोलोन पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। अब जैसे ही यहाँ पे C=C1 हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे C=C1। तो C1 में क्या होगा, जब हम चाहें तो C1 डॉट क्लास वन का क्लास ए का फंक्शन कौन सा है, सो1 है, सो1 कॉल कर लेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, बी का फंक्शन, तो बी का फंक्शन क्या है, C1 डॉट सो2, ये भी यूज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके दोनों पेरेंट क्लास को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आराम से उसके प्रॉपर्टी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपली क्या आप डिफिनेशन देख सकते हो कि when a child class inherit more than one parent class, one when a child class inherit more than one parent class। ठीक है। मोर देन वन का मतलब क्या हो गया, यानी इट मे बी टू, इट मे बी थ्री, और इट मे बी फोर। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके। यस तो सर। C1 डॉट सो वन, इसका मतलब जो भी फंक्शंस होगा वहां पे उसको कॉल कर लेगा, जो भी उसके अंदर में चीजें लिखी होंगी। C1 डॉट सो टू है तो वो भी कॉल कर लेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो हाउ मेनी मिनिमम क्लासेज विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस? मिनिमम 3 सर। वेरी गुड, मिनिमम 3, है ना। मतलब मिनिमम आपको 3 चाहिए ही होगा, तभी मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा, जिसमें क्या होगा, दो पेरेंट क्लास होगा और एक क्या होगा, चाइल्ड क्लास होगा। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3 से मोर कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लो कि अगर सपोज कीजिए कि हम बोले कि एक और एग्जांपल आप बनाइए, तो आप क्या कर सकते हैं, ए लिख दोगे, बी लिख दोगे, ऊपर में एक और क्लास ऐड कर देंगे सी, और उस सारे को लेकर डी, और सारे को कौन इनहेरिट कर लेगा, सी। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल विथ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आ गया सबको? सर यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हेलो सर। यस। हेलो हाँ बोलिए। सर, बोल रहे थे कि एक पेरेंट नोड से बहुत सारा चाइल्ड नोड हम निकाल सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? वो सर वो इसी में आएगा या फिर उसका कोई अलग हाँ, नहीं टाइप नहीं, होता है? हाँ, बेसिकली देखिए, जो इनहेरिटेंस का जो बेसिकली जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है ना, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्कियल, है ना, ये आपके माइंड में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है ना। मल्टी लेवल के बाद हम जब हायरार्कियल बताएंगे ना, तो अभी जो आप बोल रहे हैं ना कि एक पेरेंट क्लास के मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं क्या, ठीक है, तो ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस में इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है ओके। सर। ओके।
हाँ, अब देखते हैं मल्टी लेवल। देखिए मल्टी लेवल के पहले हम आपको फिर से एक बार सिंगल लेवल में लेके चलते हैं। देखिए जब भी लेबल करते हैं ना हम लोग लेबल, तो लेबल विल बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो आपका क्लास ए जो है वो किस लेवल पे है? जीरो लेवल पे है। और क्लास बी जो है वो क्या है? वन लेवल पे है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं आपको बात कर रहा हूं मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल का मतलब क्या होगा बताइए तो? मोर देन वन लेवल। तो मोर देन वन का मतलब क्या हो सकता है? एनीबडी? ये तो सिंगल लेवल है ना, तो हमें क्या करना है? मल्टी लेवल बनाना है। तो मल्टी लेवल के लिए क्या करेंगे इस पिक्चर में? सर 1 क्लास ऐड करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी एक क्लास हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना? मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। तो हमारे पास ए क्लास भी है, बी क्लास भी है, तो एक और क्लास उसको ऐड कर देंगे। वो उसको ऐड कहाँ पे करेंगे? बी के नीचे। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए इसको यहाँ पे बताते हैं आपको पिक्चर एक छोटा सा बना के। इस तरीके से, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे फंक्शन बना दिया ए, है ना? इसके अंदर में है पब्लिक वॉइड इसको सर थोड़ा फॉन्ट बड़ा साइज करना थोड़ा पड़। बड़ा कर दीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कर दे रहे हैं, कर दे रहा है, अभी रुक जाइए। पब्लिक वॉइड सो, ठीक है ना? दिख रहा है? एक मिनट, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। थोड़ा इसको पहले छोटा करके इसको ये कर। ठीक है, ये वॉइड शो हो गया। दूसरा लेते हैं यहाँ पे एड टेक्स्ट। मान लीजिए ले हो गया बी, और यहाँ पे पब्लिक, यहाँ लिख दिया वॉइड शो टू। ठीक है, क्लियर है? अब एक तीसरा ले लेते हैं। सपोज कीजिए एड टेक्स्ट, यहाँ पे लेते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड शो थ्री। इसको भी बड़ा कर देते हैं, दिखेगा अभी। ठीक है, तो पहला क्लास आपका ए है, दूसरा क्लास बी है, और तीसरा क्लास सी है। ओके, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक इंसर्ट कर देते हैं यहाँ से लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि सबसे पहला ए है, बी और सी। ए पेरेंट क्लास है किसका? बी। और सी का पेरेंट क्लास कौन सा है? बी। यानी बी ने किसको इनहेरिट किया है? ए को। और सी ने किसको इनहेरिट किया है? बी को। ओके, तो जब ए को इनहेरिट करेगा, तो जो बी का ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो क्लास बी होगा, उसके अंदर क्या होगा? ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी। आएगी ना दोनों की प्रॉपर्टी? यस सर। हेलो, ओके। इसका मतलब है कि बी के पास सो वन ए का प्रॉपर्टी पूरा आ जाएगा, और बी का प्रॉपर्टी तो उसके पास है ही। अब सी क्या करेगा? बी को इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो सी जब बी को इनहेरिट करेगा, उस केस में क्या होगा, ये चीज आपको देखना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको करना क्या है कि दैट मीन्स कि बी ने इनहेरिट किया ए को, और सी ने इनहेरिट किया बी को। तो अगर मान लीजिए कि सी का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं C1, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सी
can access the property of class A as well as class B। इसका मतलब क्या है कि C1 डॉट क्या लिख सकते हैं, सो लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, C1 डॉट क्या लिख सकते हैं, सो 2 लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो नो सर। सर। ओके, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो क्लास डिक्लेयर होगा ए होगा, उसके अंदर में जो भी फंक्शंस होगा वो लिख देंगे, फिर क्लास बी होगा। यानी इसको लिखेंगे कैसे, अब ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आप प्रोग्राम बना रहे हो तो कैसे लिखेंगे, तो क्लास ए तो आपका है ही, वो तो पेरेंट क्लास है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास बी। तो बी ने इनहेरिट किया है किसको, ए को, तो क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पे। पब्लिक ए सर। वेरी गुड, पब्लिक ए। हम इसलिए पूछते जा रहे हैं कि थोड़ा प्रोग्रामिंग भी आप लोग का साथ साथ में चलता रहे। इससे क्या होगा कि जब वो बताएंगे ना तो आप फटाफट कर सकते हैं सारी चीजों को। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लास सी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी सर। नो, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी नहीं, तब तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला, बी ने इनहेरिट किया ए को और सी ने इनहेरिट किया बी को। बी को पब्लिक बी ही होगा सर। वेरी गुड, पब्लिक बी। समझ में आया? तो दैट मीन्स कि जैसे ही क्लास ए ने इनहेरिट किया बी को, तो बी के पास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी आ गई। यानी इस बी के अंदर में ए प्लस बी दोनों क्लास आ गया। अब क्लास सी क्या कर रहा है, डायरेक्टली तो इनहेरिट कर रहा है बी को, लेकिन बी के पास ऑलरेडी ए की प्रॉपर्टी है ना। इसीलिए जब हम सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास ए और क्लास बी की प्रॉपर्टी को इजीली हम शेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट है जो शिवम ने बोला था कि सर एक पेरेंट क्लास का मोर देन वन चाइल्ड क्लास भी हो सकता है, क्या है, पॉसिबल है। लेकिन इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसका पिक्चर देखते हैं एक बार। दिस इज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस में बेसिकली पिक्चर से ही आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। यहाँ पे फिर एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से देखिए, इंसर्ट, एक आ गया यहाँ से, फिर सपोज कीजिए कि यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। टेक्स्ट सपोज कीजिए ए है, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड सो 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया एड टेक्स्ट बी पब्लिक वॉइड सो 2, ये हो गया। थर्ड है सी पब्लिक वॉइड सो 3। ओके, जो हमारा ए है दैट विल बी द पेरेंट क्लास एंड बी एंड सी आर द चाइल्ड क्लास। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया इधर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा पेरेंट क्लास कितना है, एक है, और उस एक सिंगल पेरेंट क्लास के मोर देन वन चाइल्ड क्लास है। यानी दैट मीन्स कि बी एंड सी इनहेरिट अ सिंगल पेरेंट क्लास दैट इज क्लास ए। ओके, तो इस तरीके का जो इनहेरिटेंस होगा दैट मीन्स कि ए पेरेंट क्लास कंसिस्ट मोर देन वन चाइल्ड क्लास। सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बी, तो ऑब्जेक्ट ऑफ बी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास ए, है ना। एंड व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास सी, देन इट विल आल्सो यूज द शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो b1,
ओके, B1। अच्छा ये बताइए सबसे पहले क्लास, और यहाँ पे लिखा B, तो B को के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? B ने किसको इनहेरिट किया है? पब्लिक ए को। हाँ गुड, तो यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक, पब्लिक ए, ठीक है। और अगर मान लो कि हमें क्लास सी ने किसको इनहेरिट किया है? ए को, ए तो क्या को। लिखेंगे फिर? पब्लिक ए। हो गया। यानी अगर हम बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं बी B1, तो क्या होगा? B1 डॉट क्या कर सकता है? शो 1 कर सकता है ना? ओके। और अगर हम यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सी का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? C1 कोलोन C1 डॉट शो 1। क्लियर? समझ में आ गया? दिस यस इज सर। द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। समझ में आ गया ना? अब आपके मन में एक क्वेश्चन जो था ना कि हाँ वहां पे दिख रहा है कि मोर देन वन चाइल्ड क्लास है और उसका एक सिंगल पेरेंट क्लास है या मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट पिक्चर इसका बन रहा है। देखो यहाँ पे आ रहे हैं, ये देख रहे हो ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इस पिक्चर को अगर हम सीधा अगर अपोजिट कर दें, तो वही आपका क्या बन जाएगा? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना? क्या है? हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अभी तक कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस को आपने डिस्कस कर लिया? 4 तीन। टाइप्स। यस सर, 4 4, टाइप्स। 4, यस सर। सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, है ना? उन चारों में से मोर देन वन इनहेरिटेंस को जब आप कंबाइंड करेंगे, है ना, जैसे मान लो कि एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है और एक क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, दोनों को अगर हम कंबाइंड कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी कैन राइट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दैट मीन्स कि ये क्या क्या हो सकता है? इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंगल लेवल प्लस मल्टीपल, फिर सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, ठीक है, या सिंगल लेवल प्लस हायरार्कियल। इस तरीके का जो भी एक कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज नोन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक पिक्चर भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, इंसर्ट, छोटा सा एक पिक्चर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्लास है, एक यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर दिया, सपोज कीजिए ए, ठीक है। फिर यहाँ से इंसर्ट, एक और यहाँ से ले लिया, सपोज कीजिए इसका नाम रख दिया बी। ओके, इसे मेथड नहीं लिख रहे हैं, सिंपली आपको बता दे रहे हैं कैसे होता है। फिर यहाँ पे सपोज किया, लिख दिया सी, ठीक है। फिर यहाँ से एक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, पहला आपका है एक क्लास बनाया ए, एक क्लास बना लिया बी। अब हम लोग को क्या करना है? इसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे ऐड करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ से इसको कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बन गया, सपोज कीजिए ऐड टेक्स्ट डी। ओके, सर वो फुटर पे बन गया है। कोई नहीं, फुटर पे हम लोग को कौन सा फुटर बनाना है? चलिए यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ से ले लेते हैं एक ई, यहाँ से ऐड टेक्स्ट ई। ओके,
मुझे मेन आपको दिखाना है किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है ना। अब बताइए ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है यहाँ पे। सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल है वेरी सर। गुड, वेरी गुड, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और ये कौन सा इनहेरिटेंस है। मल्टीपल। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक टेक्स्ट कर देते हैं एफ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से ले, हो गया, ठीक है। तो ए और बी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस डायग्राम इट विल बी द मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बी और ई वो दोनों को इनहेरिट कौन कर रहा है, कोई एक तीसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है, दैट इज द एफ। ओके, तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आप ये बता सकते हो क्या कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है ये किस तरीके का इनहेरिटेंस आपका इनहेरिटेंस को फुलफिल कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है या मल्टी लेवल कर रहा है, हायरार्किकल कर रहा है या सिंगल लेवल कर रहा है। मल्टीपल कर रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब ये है, हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक तरीके का देखें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। और वहां पे क्या करते थे हम लोग, सिंपली मोर देन वन पेरेंट क्लास बना रहे थे और उसके थ्रू यहाँ पे काम कर रहे थे। तो अगर आप ये बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। क्लास ए के अंदर में एक फंक्शन है सो1, क्लास बी के अंदर में एक फंक्शन है सो2, क्लास सी के अंदर में एक फंक्शन है सी3, क्लास डी के अंदर में फंक्शन है सो4 और क्लास ई के अंदर में है फंक्शन सो5। यानी सो1 सो2 सो3 सो4 सो5 सो5 5 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो बी ने किसको इनहेरिट किया है, ए को, और ई ने किसको इनहेरिट किया हुआ है, सी और डी को, है ना। तो एफ किसको इनहेरिट कर रहा है, बी और ई को। तो बी के पास ऑलरेडी किसकी प्रॉपर्टी है, एक ही। बी ने, वेरी गुड। यानी एफ जो है डायरेक्टली बी को इनहेरिट कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो ए को भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एफ इनहेरिट कर रहा है ई को, और ई के पास ऑलरेडी किसकी प्रॉपर्टी है, सी और डी की, है ना। क्लियर यस है। सर। तो इसका मतलब कि अगर हम एफ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो एफ का अगर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जितने भी यहाँ पे क्लासेज आपको दिख रहे हैं सारे की प्रॉपर्टी को शेयर कर सकते हैं ना, यस सर। कर सकते हैं। यानी एफ का अगर ऑब्जेक्ट बनाए F1, तो F1 डॉट सो वन भी हो सकता है, F1 डॉट सो टू भी हो सकता है, F1 डॉट सो थ्री भी हो सकता है, F1 डॉट सो फोर भी हो सकता है और F1 डॉट सो फाइव भी हो सकता है। क्लियर। यस सर। ओके, तो ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आ गया सबको। एक बार फ्रॉम बिगिनिंग से एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड्स एनी प्लेटफॉर्म वेयर अ क्लास कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी भी कोड को, अगर सपोज कि क्लास ए, किसी क्लास के अंदर में अगर आपने एक बार अगर आपने फंक्शंस को डिफाइन कर दिया, उसके बॉडी को, वहां बॉडी के लिए कोड अगर आपने लिख दिया, तो अगर कोई अदर क्लास में भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन रीयूज दिस कोड, कर सकते हैं ना। अगर आपके पास सपोज कीजिए कि आपको पता, ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पहले अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तो क्या करना होता, एक ही कोड को हमें क्या करना होता, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज में लिखना होता, बार बार करना होता ना ये चीज। यस सर। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये एक रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है ना। यानी एक बार अगर हमने कोड लिख दिया तो हम चाहे जहां पे भी चाहे उस क्लास के कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए जितने भी रियल टाइम एप्लीकेशन है आज के डेट में, गेम है, ठीक है, या और भी तरीके का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो कि डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं, और उसके अंदर में टाइम टू टाइम वो हम सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं, वो सारे जितने भी रियल टाइम एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, वो सारे किस में बनते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
इस प्रोग्रामिंग में ही आपको बेसिकली उसको डेवलप किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है कि कोई भी मॉडिफिकेशन और अपडेशन बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जिसके अंदर में वो एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट मीन्स कि हियर द क्लास सी दैट इज द चाइल्ड क्लास दैट कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स कि सिंगल चाइल्ड क्लास कंसिस्ट मोर देन वन पेरेंट क्लास। ओके, किस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो भी बता दिया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दैट मीन्स कि इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हम वन लेवल तक जा रहे थे, और मल्टी लेवल में आप मोर देन वन, दैट मीन्स कि इट मे बी टू, इट मे बी थ्री, और इट मे बी फोर एंड सो ऑन। ओके, एंड आफ्टर दैट we go for the hierarchical inheritance, that means कि a single parent class consists more than one child class। यहाँ पे more than one child का मतलब सिर्फ दो ही नहीं है, दो के अलावा अगर आप चाहें तो 3 4 5 6, it totally depends upon your requirement specification। okay, and lastly hybrid inheritance। तो basically hybrid inheritance is the combination of more than one types of inheritance। we already discussed about the four types of inheritance। तो जो फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है उसके अंदर में किसी भी मोर देन वन यानी किसी भी दो को मिक्स करके, दो से ज्यादा को भी मिक्स करके जो एक पिक्चर आपके पास ड्रॉ होता है, जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, दैट विल नोन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एवरीबॉडी क्लियर? सर एक हाइब्रिड से क्वेश्चन है। बोलिए। सर जैसे हाइब्रिड में हम तीन या चार किस दो का भी अगर बनाते हैं, जैसे मल्टी लेवल और मल्टी इसका ये मल्टी लेवल और मल्टीपल का अगर बनाते हैं तो सर उसको चाइल्ड एक ही करना जरूरी है क्या, या फिर अलग अलग चाइल्ड हो सकता है हाइब्रिड में? नहीं, अलग भी कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या होगा ना कि जो पिक्चर जैसे अभी आप देख रहे हो हाइब्रिड में, अगर सिंगल लेवल अलग है और मल्टी लेवल आपका मल्टीपल अलग है, तो दोनों को तो कभी भी आपको कंबाइन करेंगे तभी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना। यस सर, जैसे समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। हाँ वो कब कंबाइंड कहीं ना कहीं तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा। अगर मान लो हाँ। कि ए और बी अलग है, सी डी ई अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट अगर वर्क करेंगे तो आपको लगता है कि दोनों एक कंप्लीट सिस्टम को फॉर्म करेंगे? नो सर, तब हाइब्रिड नो। नहीं है। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। तो ये जस्ट लाइक हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इट इज द स्पेशल अप्रोच ऑफ द इनहेरिटेंस। ठीक है ना, जिसके अंदर में कुछ स्पेशल केसेज होते हैं जहां पे हम इस तरीके का इनहेरिटेंस हम लोग यूज करते हैं। और बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस के केस में ही ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना। ओवरराइडिंग जैसे कभी होता है क्या है कि कोई क्लास ए है और क्लास बी है, या क्लास ए है और इधर क्लास ई है, दोनों के अंदर में सेम नाम का फंक्शन आपका है, पैरामीटर सेम है, इस तरीके का, तो उस केस में आपका हाई ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है। ठीक है ना? मतलब ओके। सर जिस भी कॉम्बिनेशन में लास्ट में एक चाइल्ड आएगा उसी को हाइब्रिड कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। दैट मीन्स कि दो या तीन, सपोज करो कि आपके पास एक सिंगल लेवल है, एक मल्टीपल मैंने बना दिया, और एक बना दिया एक और मल्टी लेवल, और तीनों को हमें कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन के लिए आपको क्या चाहिए? क्लास चाहिए होगा ना आपको। यस ठीक सर। है, तो उस केस में कितने पेरेंट क्लास हो जाएंगे? एफ के तीन पेरेंट क्लास हो जाएंगे, बी ई और एक दूसरा जो आप बनाओगे। ओके यस सर। सर ओके, जितना भी बनाएंगे उस सबको जब ज्वाइन करेंगे तभी हाइब्रिड मतलब फॉर्म हाँ, होगा। गुड गुड, तभी हाइब्रिड होगा। आप खुद सोचो ना, जैसे मान लो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कंप्यूटर है आपका, तो आपको बोलते हैं ना कंप्यूटर क्या है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड सो ऑन, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका सिस्टम है, जो कीबोर्ड है उसको अलग निकाल के रख दें, सीपीयू अलग रख दें, और आपका मॉनिटर अलग रख दें, और सारे वायर को हम एक दूसरे से कनेक्ट ना करें, तो क्या लगता है आपका कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं नो। करेगा ना। नो सर। दैट मीन्स कि इसीलिए कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम, एंड द डिफिनेशन ऑफ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है ना? यस सर। ओके। अब इसके बाद जो मैं बता रहा था, ये तो आपका देखो इतना आपने इनहेरिटेंस में पढ़ लिया, तो इसका कोड लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, कोड लिखना इसलिए आसान होगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप लोग पिक्चर इजीली बना सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं कि हाँ ये मल्टीपल क्यों होगा, हायरार्किकल क्यों होगा, हाइब्रिड क्यों होगा, सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं आप लोग खुद से। ओके, अब जब हम लोग इनहेरिटेंस जब डिस्कस करेंगे
तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि ये सिर्फ आपको पिक्चर ड्रॉ करेंगे और पिक्चर ड्रॉ करके हम सीधा प्रोग्राम लिखेंगे। एक प्रोग्राम जैसे ही हम आपको राइट करेंगे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके, हाँ, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग का मतलब मैं अभी बता रहा था आपको, पीपीटी में आते हैं। This is the overloading. So basically in C++, when we discuss about the overloading, so there are two types of overloading that are available in C++. One is the operator overloading and another is the function overloading, है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग का मैंने अभी भी एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि अगर कोई फंक्शन जिसका नाम तो सेम है लेकिन उसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस या सिंगल क्लास के अंदर में अगर आप सेम नाम का फंक्शन बना रहे हैं, दो, एक नाम बना रहे हैं सम नाम का फंक्शन जिसके अंदर में सिर्फ 2 पैरामीटर है, और एक दूसरा एक सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर में 3 पैरामीटर्स है। ठीक है, तो पहला वाला सम क्या करेगा, सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करेगा, और तीसरा वाला जो दूसरा फंक्शन क्या है वो क्या करेगा, 3 नंबर्स को ऐड करेगा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर? यस सर। ओके, अभी हम बता भी देंगे, अभी एक स्ट्रक्चर हम बना के बता देते हैं। और दूसरा जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि हाउ जैसे हम फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं उसी तरह का वी कैन ऑल्सो ओवरलोड द ऑपरेटर्स। बेसिकली when we talk about the C++, तो there are 46 operators in C++, है ना। C++ में कितने ऑपरेटर्स हैं, 46 ऑपरेटर्स हैं, जिसके अंदर में जो 5 ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। रिमेनिंग जो 41 आपका ऑपरेटर्स है उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग? जैसे यहाँ पे देखिए iostream डॉट एच, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लास बताया ही बनाना, एक क्लास बना लेते हैं क्लास। ठीक है, क्लास का नाम रख देते हैं मान लीजिए ऐड करके। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं इंट a कॉमा b कॉमा c, 3 वेरिएबल्स बना ले रहे हैं। पब्लिक, ओके, एक फंक्शन बनाते हैं void sum, और यहाँ लिख देते हैं इंट a कॉमा इंट b। ओके, यहाँ पे लिखते हैं cout स्लैश n सम इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। ओके, this function will perform the addition of 2 numbers. Another function, the name will be same but it will be different in terms of the parameter, int b and int c. Okay, what will be the operation that will perform by this function? This will perform the addition of 3 numbers. Okay, the addition of 3 numbers, a plus b plus suppose c. Okay, क्लियर? यहां से इसको क्लास को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब मेन के लिए, अब हम सपोज कीजिए हमें इस फंक्शन को यूज करना है सम और दूसरे सम दोनों को, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, क्या करेंगे सबसे पहले, सर एक क्लास बनाएंगे नया। क्लास नहीं बनाएंगे ना, क्लास तो ऑलरेडी है ही, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यस सर। है ना। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड a1, हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों सम को कॉल करना है, तो लिखेंगे a1 डॉट सम, यहाँ पे लिख दिया 10 20। ओके, और यहाँ लिख दिया a1 डॉट सम, कितने पैरामीटर्स चाहिए, 3 पैरामीटर्स, 20, और यहाँ लिख दिया सपोज कीजिए 30, और यहाँ लिख दिया गेट ch। हो गया, क्लियर?
तो यहाँ पे आपने देखा कि इस क्लास के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने सेम नेम का दो फंक्शंस बनाया है ना दोनों, लेकिन ये डिफरेंट किस में है, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स। जब यहाँ पे आएंगे तो दैट मीन्स कि सेम नेम के फंक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म कर रहे हैं ना, डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म। ओके, यस सर। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको एक बार रन कराते हैं, कंपाइल। सर क्लियर आ रहा स्क्रीन है का स्पेलिंग। यहाँ पे, क्लियर स्क्रीन का स्पेलिंग गलत है, CLRSCR। ओके, नाउ कंपाइल, अनएक्सपेक्टेड, और सी कंपाइल नाउ, आ गया 30-60, क्लियर। यस सर। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, दिस इज नोन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर है। तो ये चीज बताइए कि फंक्शन ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेज कितनी होनी चाहिए आपके पास। 1। हाँ, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। देखो, कभी भी कहीं आप जाओगे ना, तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों के बीच में थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप ये सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि ओवरलोडिंग रिक्वायर्स मिनिमम 1 क्लास। ओवरराइडिंग कब होता है, जब इनहेरिटेंस हम करेंगे। तो इनहेरिटेंस जब भी हम करेंगे तो कितना चाहिए क्लास आपको, मोर देन 1 क्लास चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां पे लिखेंगे ओवरराइडिंग कैन बी यूज्ड और इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग मोर देन 1 क्लास। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है क्या, कि आपका जो ओवरलोडिंग है, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें इनहेरिटेंस आपका यूज नहीं होता है, ठीक है ना, और आपका वहां पे क्या होगा, ओवरराइडिंग के अंदर में आप इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। ओके। यस सर। हम्म, ये क्लियर है सबको। यस सर। एनी क्वेश्चन। नो सर। ओके, वेरी गुड। Okay, now we conclude our session.